So very good morning, beta, all of you. We are doing chapter number 10 of your organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. And in this chapter, we are doing chemical properties of haloalkanes and haloarenes. In the last videos, we have completed the nucleophilic substitution reactions in case of haloalkanes, means to say the chemical properties of haloalkanes are going on. So today we will discuss the next chemical property, means behavior of haloalkanes, and it is elimination reactions. In the last lectures we discuss about the nucleophilic substitution reactions and their mechanism, SN1 and SN2, and the type of haloalkanes which undergo SN1 and SN2 type of substitution reactions. In today's lecture, we will discuss the other chemical properties of haloalkanes, and these are elimination reactions. So, elimination reactions in case of haloalkanes. Elimination reactions are also known as dehydrohalogenation reactions. Dehydrohalogenation reactions, in which the elimination of halogen atom and one of the hydrogen atom takes place. यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम रिमूवल जो है वो टेक्स प्लेस होती है. Whenever a particular type of haloalkane is treated with alcoholic alkali, means to say alcoholic potassium hydroxide or sodium hydroxide. These type of reactions are also known as beta elimination reactions, because the hydrogen atom that gets eliminated during the course of the reaction is beta hydrogen, okay, along with the halogen atom. The simplest type of reaction in this case that we can discuss here, that is formation of ethene from ethyl chloride. This is ethyl chloride. The carbon atom which contains the halogen atom or which contains the functional group is known as alpha hydrogen and followed by that of the beta hydrogen. This is alpha carbon atom and this is beta. Beta carbon and the hydrogen atoms attached with this beta carbon atom are known as beta hydrogens. These are alpha hydrogens because they are present along with alpha carbon atom which contain the principal functional group. When this particular species is treated with the potassium hydroxide alcoholic medium, then there takes place elimination reaction. From here, this Cl negative ions gets removed out, Cl as Cl negative ions. This particular carbon hydrogen bond gets shifted towards alpha hydrogen atom, this one, and from here H positive ion gets removed out. The formation of alkene as the major product takes place. Ethene, along with the liberation of potassium bromide and water, KBr plus H2O.
This is simplest type of beta elimination reaction or dehydrohalogenation reaction or simply elimination reaction in case of haloalkanes. Clear? Means whenever a particular haloalkane is heated, इसको heat करते हैं in the presence of concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide. Concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide, elimination reaction takes place. एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, अगर हम अल्कोहलिक कंडीशंस की जगह एक्वस कंडीशंस ले लेते हैं, देन सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस irrespective of that of elimination. अगर हम एक्वस KOH की प्रेजेंस में, एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सॉरी एक्वस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, एलिमिनेशन नहीं होगी यहाँ पे. लेकिन अगर एल्कोहलिक कंडीशन में करवा रहे हैं तो एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक KOH, haloalkanes undergo elimination reactions, whereas in presence of aqueous alkalis, that is aqueous KOH or aqueous NaOH, the haloalkanes undergo substitution reactions. Explain why. तो उसके पीछे बेटा cause क्या है? The basic cause is the nature, again the nature of KOH. यहाँ पे क्या होता है, एक्वस कंडीशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है. OH नेगेटिव आयन जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल which can displace chloride ions from the haloalkane and hence substitution reaction takes place. But in case of alcoholic concentrated solutions of KOH, OH negative ion formation does not takes place. न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होता, कहने का मतलब ये है. और जब तक न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस नहीं होगी. सो दैट्स वाई यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रह जाता है, एलिमिनेशन रह जाता है. दैट इज एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज इथीन, वो एज अ मेजर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये बेटा, इसको ध्यान से आप लोगों ने कर लेना है थॉरोली. यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे यहाँ पे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक ही है, मीन्स एक ही बीटा कार्बन एटम है. कई केसेस में ऐसे होता है कि हमारे पास 2 बीटा कार्बन एटम्स होते हैं आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, लेफ्ट साइड के ऊपर भी और राइट साइड के ऊपर भी प्रेजेंट होगा. वहां पे एलिमिनेशन किस तरह से होनी है, इसके लिए एक रूल था हमारे पास विच इज नोन एज सेजेफ रूल, SAYTZEFF, सेजेफ रूल. इसको साइंटिस्ट रशियन केमिस्ट थे अलेक्जेंडर जेसेव, ठीक है जी, ALEXANDER, अलेक्जेंडर जेसेव, ये थे अलेक्जेंडर जेसेव, JAITSEV, जेसेव. इन्होंने ऐसी रिएक्शंस को स्टडी किया, ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी किया जहां पे 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड हाउ the elimination products are formed in such type of cases studied by this particular Russian chemist Alexander Zesev. That's why the generalization provided by this particular scientist is known as Sezeff rule, SAYTZEFF apostrophe S, Sezeff rule. Okay, ये कब, जब हमारे पास
2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कंपाउंड्स इन केस या कंपाउंड्स इन विच 2 types of beta hydrogen atoms are present, the major product will be obtained. So that particular major product will be obtained which is highly alkylated or which is symmetrical, you can say. For example, if we take the example of this one 2-bromobutane. दिस इज 2-bromobutane। अगर हम इसको शो करें तो कुछ इस तरह शो कर सकते हैं। ये यहां पे आप देख सकते हो 2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, वन ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट साइड। अब 2 पॉसिबल एलिमिनेशन हो सकती हैं, क्योंकि यहां से भी एलिमिनेशन हो सकती है, यहां से भी एलिमिनेशन हो सकती है। ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन भी रिमूव आउट हो सकता है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट विच इज हाईली अल्काइलेटेड। अल्काइलेटेड इन द सेंस मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे डबल बॉन्डेड के आइदर साइड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके आइदर साइड्स के ऊपर अल्काइलेशन ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है जी, मीन्स टू से यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, कौन कौन सी? एक केस में जब मान लीजिए हम ये वाला केस ले रहे हैं, दिस वन, ठीक है, राइट साइड वाला बीटा हाइड्रोजन लेकर चल रहे हैं, तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन, ब्यूट 1ene। बट इन सेकंड केस, अब ये वाला केस हमने, अब दिस वन केस लेंगे, ये वाला लेफ्ट साइड वाला बीटा हाइड्रोजन, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ब्यूट 2ene। ब्यूट 2ene। तो इस केस में अब दोनों केसेस में आप ध्यान से देखोगे, ब्यूट 1ene के केस में ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ओनली वन साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट्स ऑक्युपाइड बाय द अल्काइल ग्रुप, अदर साइड देयर इज नो अल्काइल ग्रुप, सो हेंस कंपैरेटिवली दिस इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। बट इन दिस केस ब्यूट 2ene, on either sides of the double bond there are one alkyl and one alkyl group, that is one methyl group is present on either sides of the double bond, either sides of the double bonded carbon atom, which makes it highly alkylated. Okay, and hence this will be the major product during elimination in such cases where 2 beta hydrogen atoms are present. And this rule for identification of the major or minor product is known as Sezeff rule. ठीक है जी, you can write according to this rule, if any carbon atom within the chain, the alkyl can undergo dehydrogenation in 2 or more different directions depending upon the number of different types of hydrogens available. In all such cases, the more highly substituted alkene, that is having a lesser number of hydrogen atoms on the double bonded carbon atoms, these one, only one carbon, one hydrogen and one hydrogen atom are present, will be the major product during elimination reaction. This is a Sezeff rule, and it is very, very important
ये क्वेश्चन आपको सीधा भी आ सकता है, व्हाट इज सेजेफ रूल, ठीक है, एक्सप्लेन बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। या फिर कई केसेस में क्या होता है कि आपको इस तरह से रिएक्शन दे देंगे, ये रिएक्शन दे दी, यहाँ पे लिख दिया अल्कोहलिक KOH, आपको बोलेंगे कि ए और बी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, ए एंड बी, और आपको बोल दिया जाएगा, पूछेंगे कि विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट आइदर ए और बी एंड वाई। सो यहाँ पे आपने फिर सेजेफ रूल को अप्लाई करना और सेजेफ रूल के विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है जी। इस चीज को ध्यान से करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा, जो ज्यादा सिमेट्रिकल रहेगा, वो आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट स्टेबल एज वेल एज बेटर यील्ड में बनेगा, लार्ज अमाउंट में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज, this is the type of elimination reactions that takes place in case of haloalkanes. The next is reactions with metals. Whenever alkyl halides are made to react with metals like magnesium, the formation of organometallic halides takes place, and in these cases the most important are known as organometallic compound. These are Grignard reagents. Formation of Grignard reagent takes place. We are doing reaction with metals. So whenever given alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, the formation of organometallic compound takes place, RMgX, alkyl magnesium halide, and this is known as Grignard reagent. This is an important compound which is used for preparation of other organic compounds. Okay, Grignard, because it was discovered by Grignard in 1900, and for this he got the Nobel Prize in Chemistry in 1912. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट थे ये, ठीक है जी, विक्टर ग्रिग्नार्ड, डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी के नेम के अगेंस्ट इनका नाम लिखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है, दीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की जो प्रेपरेशन होती हैं एज वेल एज इनकी जो यूजेस होती हैं आगे फर्दर रिएक्शंस में जब हम इनको यूज भी करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली such reactions are carried out in the presence of anhydrous conditions or in the presence of dry ether. This is because the alkyl magnesium halides or these organometallic compounds are highly reactive species. They act as a strong proton acceptor species. ये strong proton acceptors होते हैं, इवन माइल्ड से माइल्ड प्रोटॉन डोनर स्पीशी के साथ भी ये इजीली रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव एल्केन बना लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की, जैसे वाटर के साथ मान लीजिए अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो होगा क्या, मॉइस्चर कंटेंट के केस में जैसे हाइड्रोजन, वाटर आपके पास वीक प्रोटॉन डोनर स्पीशी होता है, ये
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, मतलब अल्काइल जो ग्रिग्नर एजेंट है जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, यहां से आपके पास RH ये फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन, along with फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बाहर हो जाएगा। Because of this particular reaction, the preparation of Grignard reagents and their uses is always takes place in complete absence of moisture, that is in anhydrous conditions or in dry ether medium. Okay, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, why Grignard reagent prepared under anhydrous conditions? So because the Grignard reagent is strong proton acceptor, and by reacting with any mild to mild proton donor species, they gets converted into respective hydrocarbon alkanes. Okay, so to protect this particular reaction, these are prepared under complete anhydrous conditions. They can also react with oxygen as well as carbon bond dioxide. So hence their presence requires absence of these all species, that is moisture, air, carbon dioxide, etc. etc. इनर्ट एटमॉस्फेयर में बनाया जाता है स्पेशली, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हम +1 में करके आए हैं, जैसे वर्ड्स रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल थी। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद सोडियम, एक्टिव मेटल सोडियम के साथ फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स टेक्स प्लेस, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो वो रिएक्शन एज इट इज आप लोगों ने लर्न कर लेनी है वाइन से। इसके अलावा एक और रिएक्शन थी जहाँ पे हमने कोरे हाउस रिएक्शन आपने +1 में की थी, एक कोरे हाउस रिएक्शन लिथियम वगैरह के साथ हम लोग ट्रीट करवाते हैं, तो ये आप लोगों ने वही रिएक्शन एज इट इज कर लेनी है, ठीक है जी। एक टेट्राइथाइल लेड होता है, टेल जिसको हम बोलते हैं, टेल टेट्राइथाइल लेड जो है ये आपका कंपाउंड होता है विच इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन, मतलब पेट्रोल वगैरह में एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसकी जो प्रेपरेशन है वो भी हम किसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं। मैग्नीशियम की जगह पे किसको ट्रीट करेंगे, लिथियम को। आपके पास अल्काइल लिथियम हैलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हेलोजन एटम वाला आपके पास सिंपल अल्काइल लिथियम बनते हैं। कर ही लेते हैं इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है ये। करेंगे क्या, इथाइल ब्रोमाइड को, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, इसको लिथियम के साथ ट्रीट करवाते हैं ड्राई ईथर। आपके पास इथाइल लिथियम बन जाता है, इथाइल लिथियम अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। अब ये जो इथाइल ब्रोमाइड है ये फिर दोबारा से रिएक्ट करता है, ठीक है जी, सोडियम, या इसको हम बोलते हैं सोडियम लेड अलॉय के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है। दिस इज called sodium lead alloy, 4 moles, and formation of tetraethyl lead takes place. This is tetraethyl lead, NaBr, and और आपके पास फर्दर लेड ब्रोमाइड जो है वो प्रोड्यूसर, लेड ओनली लेड Pb, 3 moles of Pb एंड 4 moles of NaBr जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये टेट्राइथाइल लेड कंपोनेंट यूज किया जाता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन।
So this is all about the chemical properties of haloalkanes. इन रिएक्शंस को आप लोगों ने थॉरोली रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। स्पेशली से जैफ रूल हो गया, ठीक। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो भी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइथाइलेड, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में वही आ गया आपके पास। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बोला था कि वहाँ से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको 3 या 4 अल्काइल हैलाइड दे देंगे, आपको पूछा जाएगा कि विच अल्काइल हैलाइड विल गो या विल प्रेफर SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। तो इन चीज़ों को अपने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है सारे का सारा। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है इसमें हैलोअल्केन्स का ही, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके अलावा सम ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अबाउट हैलोअल्केन्स एंड कुछ डेफिनेशंस टर्म्स आ जाती हैं बीच में, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्टेज पे। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज अदर जो हैं, जैसे हैलोअल्केन्स की ये थी, अब हैलोरेन्स की डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हार्डली 1 या 2 लेक्चर बचे हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है पूरे चैप्टर को, ठीक है बेटा जी। बाकी कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो आप डिस्कस कर सकते हो।